So why we are more interested in sample rather than population? Because statistics apply only for sample. Okay, I'm just giving you a quick recap. So survey for placement, you have gone for the survey of placement, you go to this college, and ultimately when you receive all these students data, then you cannot claim that it is a population. So it is not a population. Okay, now for example, if you even if you call the students from their home, get the data from other universities who are coupled up with the existing university, you also get the data from web, but still populations are hard to find, define and observe. So that's why we go for samples. Okay, so why sample? Sample is less time to contact, less time consuming, less costly. Okay, a random sample is collected when each item or member is chosen by chance. It is not a kind of a thing कि मैं department wise segregate करके choose नहीं कर रहा हूँ. I'm directly choosing it by like a random thing. मैंने ऐसे ही आँख बंद करके piece handful of students मैंने उठा लिए, and I started analyzing what is the placement scenario of that particular college. And what is the representative samples? Representative sample is a sample that accurately represents the population. Okay, एक ऐसा sample जो population को accurately represent कर सकता है. Maybe most of the mean is approximately equal to the sample mean. Sample mean approximately equal to the population mean. So that kind of data is representative sample. Okay, so sample, it is difficult at first, then after it becomes easier, and statistical work with incomplete data. When you are applying statistics, you have to work with incomplete data. Okay, so fundamentals of descriptive statistics, these all the things: categorical data, then measurements level, discrete is a perfect integer kind of thing. And what is continuous data? This is continuous data 68, it shows in the meter as 68 kg, but it's actually 68.234223122 something this kg. Okay, so discrete versus continuous, we have understood this. Then measurement levels, qualitative, quantitative. Then in qualitative we have nominal and ordinal. Then in nominal we don't have a specific order to be put in. We cannot put them in alphabetical order, neither by the size, neither by the category. Okay, so if I define seasons को हम order में डाल ही नहीं सकते. Okay, so ordinal is that follows strict order. Okay, it cannot go like a normal thing. It is having a strict order. Okay, this is qualitative, ordinal. So now what is quantitative? Quantitative has interval and ratio. So interval doesn't have a true zero, ratio has a true zero. जैसे लेंथ या फिर चीजें अगर मैं ऐसे बोलता हूँ लेंथ या फिर वेट बोलता हूँ तो उसका ट्रू जीरो मिल जाएगा. लेकिन इंटरवल अगर मैं टेम्परेचर बोलता हूँ या फिर मैं अगर प्रेशर बोलता हूँ या टेम्परेचर बोलता हूँ, इट डजंट हैव अ ट्रू जीरो. ओके, नाउ these numbers fall in the both category, क्योंकि मैंने यहाँ कोई डिफाइन नहीं किया है, यूनिट्स डिफाइन नहीं किया है. सो ऑल द नंबर्स कैन बी पुट इन इंटरवल एज वेल एज रेशियो, बिकॉज नंबर्स को मैं नेगेटिव में भी लेकर जा सकता हूँ, इंटीजर्स, रियल नंबर्स एंड ऑल. ओके, सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैटेगोरिकल डेटा हमने देखा था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स, बार चार्ट, पाई चार्ट, पैरेटो डायग्राम, measures of central tendency, asymmetry and variability. Okay, so this is mean, median, mode is the measure of central tendency. Mean is simply called as mean. Average बोल सकते हैं इसको, population, sample के लिए x bar बोलते हैं, population के लिए mu बोलते हैं. How do we find the mean? सभी को ऐड करो और number of components से divide करो. Okay, so the main problem with the mean is outliers. हमने उसका एग्जांपल भी देखा था. फिर अभी आप उस टाइम पे मैंने पूछा भी था कि सबसे अच्छा कौन सा है. सो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बेस्ट, बट सिर्फ एक के बेसिस पे डिसीजन लेना इज द रॉन्ग थिंग, इट्स अ वर्स्ट थिंग. ओके, सैंपल स्क्यूनेस फॉर्मूला मैंने दिया था ये. इट्स नॉट, यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, और यू डोंट हैव टू कहीं लिख कर नहीं रखना है, because it's not of that important. Okay, because we directly use the formula in a normal distribution table. So variability, variance, standard deviation, coefficient of variation, different formulas for sample and population. Okay, तो हमने इसको भी एनालाइज किया था. सो हमने उसको फिक्स कैसे किया, क्योंकि देखो इसमें सैंपल डेटा और पॉपुलेशन डेटा में अगर हम 10 सैंपल लेते हैं तो 10 डिफरेंट मीन मिलता है, या डिफरेंट मोड मिलता है, डिफरेंट मीडियन मिलता है. तो हमने इसको कैसे फिक्स किया, पॉपुलेशन फॉर्मूला और सैंपल फॉर्मूला से फिक्स किया. कौन सा फॉर्मूला? ये तो हो गया, मीन के लिए तो हो गया. वेरिएंस में तो दोनों का फॉर्मूले में डिफरेंस मिलेगा आपको. सैंपल वाले में डिनोमिनेटर में -1 करते हैं. ओके, पॉपुलेशन में सिर्फ n रखते हैं. ऑब्जर्वेशन, मीन, दिस इज द पॉपुलेशन वेरिएंस फॉर्मूला. ओके,
So standard deviation formulas, population standard deviation, sample standard deviation, उसका रूट लेना है बस, और कुछ नहीं करना है. And standard deviation upon mean, that is nothing but coefficient of variation. Okay, relative standard deviation. This is also called as relative standard deviation. Then covariance हमने किया था, greater than 0, less than 0 होता है और equal to 0 होता है तो independent होता है, greater than 0 होता है तो move together होता है, दोनों साथ में चलता है. जैसे समर एंड आइसक्रीम, जितना मतलब समर सीजन और आइसक्रीम का सेल्स दोनों साथ में चलता है. द टू वेरिएबल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. ओके, द सेम दैट आइसक्रीम एंड अम्ब्रेला मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन. उसका एक एग्जांपल भी दिया था मैंने कोरिलेशन में. कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन बोथ हैव दिस न्यूमरेटर, तो कोवेरिएंस पे डिपेंड करता है, राइट? तो कोरिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेरिएंस. ओके, so here I have shown the thing that correlation of 0 means both the variables are independent. So price of coffee in India won't affect the cost of house in London. Okay, price कॉफी का कितना भी हो वो लंदन के घर के प्राइस को अफेक्ट नहीं करेगा. Then negative correlation of means both the variables are inversely dependent. जैसे मैंने बोला था, so negative correlation means both the variables are inversely dependent, like ice cream, the sales of ice cream and sales of umbrella. Okay, just an example now. Then this was the end of first model, that was descriptive statistics. Then we moved to inferential statistics, in which we understood what is distribution, probability distribution. Distribution is a function that shows the possible values for a variable and how often they occur. कितना frequency है values का वो हमें पता चलता है. Okay, we took the example of dice. तो इसका 1/6 ही आता है ना, कोई भी नंबर का अगर हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया, क्योंकि हर किसी का सेम प्रोबेबिलिटी है 0.1667. और अगर मुझे 7 चाहिए तो वो इम्पॉसिबल है. लेकिन यही आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखोगे तो 7 लाने का प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्स है. 7 जो नंबर है उसका प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्स है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे फ्रीक्वेंसी मतलब वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं या फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं मुझको कि 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 ऐसे मुझे मिल सकता है. तो इतने सारे कॉम्बिनेशन सिर्फ 7 नंबर को एग्जिस्ट करता है. इतने सारे कॉम्बिनेशंस कोई और नंबर को एग्जिस्ट नहीं करता. सबसे कम कॉम्बिनेशन तो 12 और 2 का है. जब 2 चाहिए मुझे दोनों डाइस में 1 चाहिए रहता है, और जब 12 चाहिए तो मुझे दोनों डाइस में 6 चाहिए होता है. सो लीस्ट प्रोबेबिलिटी उनका है. ओके, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टूडेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था ये थोड़ा फैटर टेल होता है. लाइक आई गॉट द सेम इमेज, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट इट्स अ फैटर टेल. ये एकदम टच नहीं होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पूरा टच होता है. ओके, सो देन रीजंस दे अप्रोक्सीमेट a wide variety of random variables. क्यों स्टूडेंट्स टी यूज करते हैं? क्योंकि हमारे पास अगर असली पॉपुलेशन का हमारे पास वेरिएंस नहीं है या स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है तो भी हम approximately समझ सकते हैं. Okay, all computable statistics are elegant. Distribution with large enough sample sizes can be approximated to normal. Okay, decisions based on normal distribution insights have good track record. इसका फीडबैक अच्छा है स्टूडेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का. ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन अटेम्प्ट ट्रायल एंड एरर पे अटेम्प्ट किए गए थे, लेकिन स्टूडेंट्स ट्री इज द मोस्ट कंसिस्टेंट वन ऑफ दोस. ठीक है, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये हो गया मेरा मीन मीडियन मोड. ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में. और ये स्टैंडर्डाइज्ड है. देखो यही स्टैंडर्डाइज्ड है क्योंकि इसमें 0 के ऊपर ये सब आता है. मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड इक्वल टू 0, तो सेम लाइन का. देन कम्स दिस आल्सो कॉल्ड एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, बेल कर्व बोल सकते हैं. तो ये कौन सा स्क्यू है? दिस इज जीरो स्क्यू. ओके, ये जीरो स्क्यू है, इसको कोई स्क्यू है ही नहीं. हमने स्क्यू का देखा था. So this is mu and this is sigma. Okay, sigma means standard deviation, mu means mean. Okay, here we are referring to population, but from the future we will be referring to sample. Okay, तो जब अगर हम mu change करते हैं तो ये shift होते जाता है, लेकिन variance standard deviation same रहता है. लेकिन जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज करते हैं तो हाइट बड़ा छोटा होता है और फैटर टेल्स अचीव होता है. जितना कम हम ये करते हैं, मतलब जितना कम हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उतना थिन टेल्स होता है हमारा, बहुत थिन टेल होता है. लेकिन जितना स्टैंडर्ड डिविएशन बड़ा होता है उतना फैटर टेल मिलता है हमें. ओके, दिस अ फैटर टेल विथ मोर दिस थिंग
standard deviation. Okay, then comes standard normal distribution z. तो हम इसको standardize कैसे करते हैं? Now how do you standardize it? Okay, this is the standard thing जिसमें mu is equal to 0 होता है, sigma equals to 1 होता है. मैंने पिछले इसमें बोला था, देखो ये 0 से शुरू होता है, 0 skew है, and sigma equals to 1, that is standard deviation equal to 1. Okay, from normal to standard normal हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? ओरिजिनल वेरिएबल माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन. ये फॉर्मूला याद रखो, अभी आज के लेक्चर में ये थोड़ा सा काम आएगा. हाइपोथेसिस टेस्टिंग है आज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना. जी स्कोर के लिए हम ऐसा करते हैं. ओके, एवरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड. ओके, डेटा सेट हमने इतना इतना सैंपल लिया था. ओके, then the more samples you extract, the bigger the samples, the more closer you go to normal distribution. Okay, and what is standard error? Standard error is caused by different methods like not taking exact number of samples. So it is represented as sigma by root n. That is nothing but a standard deviation. Okay, and then why it is used? Because it tells you how well you approximated the true mean. कितने सही तरीके से आपने approximate किया. हमने ये practically test भी करके देखा था Excel में. So estimators and estimates, sample information estimator estimates. Okay, so point estimates, point estimate हमें single thing देता है, single number देता है, while as confidence estimates हमें interval देता है. What is the problem with these things? Biased होता है, कभी-कभी efficiency कम होता है. Now what we are focused on? We are focused on estimators, that is unbiased and most efficient. कम time में अच्छा result देने वाला. So bias theory, this is a kind of a theory one. I have explained it. X bar plus 1 feed estimates mu. ऐसा मैं अगर बोलूँगा तो इट्स अ टोटल बायस्ड. ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अभी अगर मैंने कुछ भी एक सैंपल का एवरेज ले लिया और +1 डाल दिया और बोल दिया कि यही असली पॉपुलेशन का होएगा. नहीं, इट्स नॉट ट्रू थिंग, इट्स अ बायस्ड वन बिकॉज यू डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल रिसर्च ऑन इट. ओके, सो बायस्ड थिंग, सो दिस इज अ बायस ऑफ 1 फीट. यहाँ आप एक फीट का बायसिंग कर रहे हो. ठीक है, so then confidence interval, population variance अगर पता है तो it's very easy one. Okay, but if the population variance is unknown, then you have to go for t score. हमने z score t score देखा है. So confidence interval is the range within which you expect the population parameter to be. Okay, so now we have took this example in the Excel sheet. Okay, confidence interval, reliability factor, point estimate, standard error. Okay, student tree distribution, inference through small samples, unknown population variance, huge real life applications. So उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था x bar minus mu upon s upon root n. ये फॉर्मूला हमें यहाँ यूज होने वाला है. ये सेम फॉर्मूला था वहां भी, लेकिन वहां नीचे सिग्मा था, that is standard deviation, but here it is s upon root n, that is standard this thing upon root n. Okay, approximation of normal. So students t normal, this is students t and this is normal. Students t में देखो fatter tails होता है. As I said, it has fatter tails. यहाँ लिखा भी है, it's much like normal distribution, but it has fatter tails. That means it has more uncertainty. Student stream में uncertainty क्यों ज्यादा है? क्योंकि हमारे पास असली population का variance ही नहीं है, तो हम estimate ही नहीं कर पा रहे कि हम सही है गलत है. तो हम बस हमारा एक range prepare करके रखते हैं. That's it. Okay. So this is again the same formula, degree of freedom. X bar minus mu. X bar is the what do we say? X bar is the sample mean minus mu upon standard deviation. Okay, s is standard deviation upon root n. Okay, so we have gone through the Excel sheet. Okay, so this was the t table we referred over there. Then margin of error we found it कि जो प्लस माइनस होता है वही मार्जिन ऑफ एरर होता है. x बार के बाद जो होता है वो मार्जिन ऑफ एरर होता है. आफ्टर x बार whatever it lies. Okay, so that is margin of error. Bigger the margin of error, wider confidence interval. Smaller margin of error, narrower confidence interval. Okay, then reliability factor. Now population variance known and population variance unknown. We will apply confidence interval for two populations. वो हमने करके देखा था. तो डिपेंडेंट का तो आसान था कि हमने मैग्नीशियम चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट का लिया था, हमने एक्सेल शीट रेफर किया था. Then interpreting the result, हमने रिजल्ट भी इंटरप्रेट किया था. In 95% of the cases, the true mean will fall in this interval. The whole interval is positive. The levels of magnesium in the test blood is higher. हमने ये z score use किया and we found out that everything is normal and ultimately we got into the conclusion that 95% of the cases ये है कि सच में वो pill effective है. ठीक है, और पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन में हमने ये कंक्लूड किया था. डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट टीचर्स है, क्योंकि एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है. हमने इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का स्कोर पे रेफर किया था.
then this is a difference, formula for variance difference. Directly subtract नहीं करना है, square लेकर के यही formula होता है. Okay, so इसमें भी हमने summarize किया था. So now but assume to be equal, हमने assume कर दिया इसको equal है. So that this is the formula, that's the pooled standard deviation. इसको बोलते हैं pooled standard deviation, जिसको हमने यहाँ square किया है. Then afterwards we use that square value divided by number of samples in x, number of samples in y, पूरे को root ले लिया और ultimately हमें एक interval मिल गया. Okay. Then independent sample but assumed to be different. ये आपका assumption है, so that's why it's a very complicated formula. So I would suggest कि आप अगर ऐसा use करोगे, that would be better for you because you are assuming to be equal. Okay, that's it. This was the thing for the statistics 1. Now we'll be going for statistics 2. Okay. Don't worry, ये slides के number देख करके आप इतना डर मत जाना, ये 106 slides है वगैरह वगैरह. But this statistics 2 won't be of that much slides. Okay, it's a normal thing, छोटा ही होगा. So this is the main topic, hypothesis testing. ये कहाँ use होता है? Wherever data driven decision making is there. Okay, जहाँ भी आपको data driven decision making दिखता है, वहाँ hypothesis होता है. Confidence interval gives the range of the parameter. Okay. Similarly, hypothesis gives the parameter in yes or no. Confidence क्या करता है? एक मिनट. Confidence क्या करता है कि भाई once कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या करता है, समझो एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास. ओके, तो यहाँ से यहाँ आपका मीन या फिर जो भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मोड या फिर मीन या फिर कुछ भी, वो इसी इंटरवल के बीच में आएगा करके कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलता है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में ऐसे आएगा, 99% है कि इसके बीच में आएगा. अब जितना परसेंटेज बढ़ाओगे वो इतना ज्यादा जाते जाएगा. अभी अगर आप 99.9% बोलोगे तो वो यहाँ तक लेकर जाएगा, बोलेगा कि ये यहाँ से यहाँ के बीच में. ओके, यहाँ से यहाँ बीच में. ओके, सिमिलरली हाइपोथेसिस गिव्स द नंबर एंड गिव्स द पैरामीटर एंड यस और नो. बस मैंने उसको क्वेश्चन पूछा, फॉर एग्जांपल इज दिस डेटा राइट, सो इट विल गिव मी द रिजल्ट इन यस और नो. ओके, यस या फिर नो में देगा आंसर. अगर ये रिजल्ट राइट है क्या, अगर मैंने उसको ऐसा पूछा तो यस या फिर नो बोले, बस उसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना है. ओके, so this is a very important one, so please remain focused over this. There are 4 steps in data driven decision making. Okay, formulate a hypothesis, find the right test, execute the test, make a decision. Okay, सबसे पहले हम एक hypothesis formulate करते हैं. So I'll just tell you what is an hypothesis. इसके बाद वाले slide में मैं explain करता हूँ. उसके बाद find the right test, कौन सा test apply करना है वो देखना है. Execute the test by minimizing the errors. इसमें 2 errors होते हैं, type 1 error and type 2 error. So then we make the decision. Okay. So what is a hypothesis? Hypothesis is an idea that can be tested. ठीक है, ये ऐसा proper definition नहीं है, लेकिन this is the thing कि एक ऐसा idea होता है जिसको हम test कर सकते हैं. Let it be like the price of apple in New York is are expensive. Okay, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि the price of apple in New York is expensive, so this will be a simple statement. ठीक है, हम इसको हाइपोथेसिस बोल ही नहीं सकते क्योंकि आपके लिए एक्सपेंसिव अलग हो सकता है, मेरे लिए एक्सपेंसिव अलग हो सकता है, थर्ड पर्सन के लिए एक्सपेंसिव अलग हो सकता है. फॉर एग्जांपल आपके लिए 10,000 एक्सपेंसिव हो सकता है, मेरे लिए 2,000 भी एक्सपेंसिव हो सकता है, और थर्ड पर्सन के लिए 20,000 भी उसके लिए सस्ता हो सकता है. सो मे बी 50,000 माइट बी एक्सपेंसिव. सो उसको अगर आप बोलोगे कि भाई एप्पल बहुत एक्सपेंसिव है, देन यू वुड बी लाइक भाई मतलब 50,000 के ऊपर है क्या. आई एम जस्ट गिविंग यू अ थिंग, 50,000 पर केजी या फिर सॉरी पर 100 केजी ले लो या फिर पर हाँ पर 100 केजी के आसपास ले लो. सो दैट इज दैट द प्राइस ऑफ एप्पल, ऐसा वो पूछेगा. ओके, सो बट इफ आई से दैट एप्पल आर मोर एक्सपेंसिव देन $1.75, एक एप्पल का प्राइस $1.75 के ऊपर है, देन आई कैन ट्रीट इट एज एन हाइपोथेसिस. ओके, सो क्योंकि मैंने यहाँ मेंशन कर दिया डेटा, यहाँ मैंने एक डेटा मेंशन कर दिया कि 1.75, ऐसा मैंने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि एक्सपेंसिव है, महंगा है. अभी मैं किसी को जाके बोलता हूँ महंगा है, तो उसको उसका रिएक्शन कैसे होगा, सच में महंगा है, अरे बाप रे, मतलब 500 रुपए के भी ऊपर है, उसके लिए 500 रुपए महंगा है, लेकिन मेरे लिए 50 भी महंगा हो सकता है या 100 भी महंगा हो सकता है. सो दैट्स द थिंग ओवर हियर. ओके, सो इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन लाइक क्लिंटन और ट्रम्प, किसके अंडर अमेरिका बेटर था, तो हियर आई कैन नॉट से
मतलब अंडर हुज एडमिनिस्ट्रेशन वाज यूएसए बेटर. सो किसके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका बेटर था. तो इसके मेरे मेरे पास एक तो डेटा नहीं है, इट कैन नॉट बी टेस्टेड एंड नॉट अ हाइपोथेसिस. क्यों मेरे पास डेटा नहीं है? क्योंकि मिस क्लिंटन तो आई नहीं अमेरिका में. पहली बात, शी वाज नेवर अ प्रेसिडेंट इन अमेरिका. शी जस्ट ट्राइड आफ्टर ओबामा. शी फेल्ड टू डू सो बिकॉज ट्रम्प बिकेम द प्रेसिडेंट. सो एंड नाउ सिंस ट्रम्प्स रूल इज नॉट ओवर, ट्रम्प का जो प्रेसिडेंटशिप है वो ओवर नहीं हुआ है, तो आई डोंट हैव अ रिलेवेंट डेटा कि क्या है कैसा है. तो नो डेटा, आई डोंट हैव डेटा, बिकॉज डेटा तभी जनरेट होता है जब उनका रूलिंग खत्म हो जाता है. सो लाइक इन इंडिया, इवन इंडिया कांग्रेस के बाद बीजेपी, तो कांग्रेस का डेटा है, बीजेपी का डेटा नहीं है. इट हैज नॉट एंडेड. मतलब जब उसका फिर शिफ्ट होता है तभी हमें समझ में आता है हाँ कि कौन बेटर था कौन नहीं बेटर था एंड ऑल. दैट्स अ डिफरेंट पॉलिटिकल इशू. So still, we can still apply hypothesis in the political issues, but it's not a major part of the hypothesis. Okay. So if I just say that under whose administration was USA better, तो अभी इसमें मैं तो सीधा बोल सकता हूँ कि आई हैव अ डेटा. ठीक है, इसमें हम टेस्ट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ओबामा वाज देयर. ओबामा डिड द प्रेसिडेंटशिप. ही वाज elected twice as a president. Then here George Bush was their president before him. So मेरे पास डेटा है, इन्होंने अपना प्रेसिडेंटशिप खत्म कर दिया है. सो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन, कि मतलब क्या डेटा है. Before Obama came, this was the data. Before Bush came, this was the data. How unique is Obama? How unique is Bush? ऐसे हम हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं आइडियाज डाल करके. ओके. सो अभी आपके पास अभी ग्लास डोर करके किसी को पता होगा तो आप देख लेना गूगल करके. इट इज अ थिंग कि वो बताता है कि कौन से कंपनी कितना पैकेज देता है. एवरेज पैकेज के बारे में बात करता है. लेकिन मैंने जहां तक देखा है 60% वो गलत ही देता है लेकिन 40% राइट देता है. तो मैं 60-40 सीधा एसम्पशन तो नहीं लगा सकता हूँ. सो व्हाट आई कैन डू इज, मीन डेटा साइंटिस्ट सैलरी इन द यूएस इज $113,000, $113,000. Okay. So Glassdoor is a website where current and former employees rate their employers and the C-level management. All data is self-reported. खुद से रिपोर्ट किया गया है. किसी ने मतलब प्रॉपर हर एक कंपनी में जाकर के एवरेज नहीं लेता है. तो एक दो कंपनी जो पॉश लोकेशंस में उसमें से किसी ने डाल दिया तो उसको एवरेज कंसीडर करके चलता है Glassdoor. इट हैज नथिंग टू डू विद एनी दिस थिंग. खुद से वो जाके हर किसी का कैलकुलेट करके नहीं करता है. ओके. सो इट हैज जस्ट गिवन मी कि ऐसा डेटा दे दिया उसने $113,000. अब ये सही है या गलत है, ये मुझे कैसे टेस्ट करना है? बाय जनरेटिंग अ हाइपोथेसिस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस. पहले आपके पास कोई आकर के बोलता है भाई मेरे पास जॉब है डेटा साइंटिस्ट का और $113,000 है मेरा पैकेज. तो पहले आप क्या करोगे, सिंस यू हैव नो आइडिया यू शुड एक्सेप्ट. आपको वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. हाँ ठीक है, हो सकता है. तो हमने उसको क्या कर दिया, उसको हमने नल हाइपोथेसिस में डाल दिया. नल हाइपोथेसिस. ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग. तो हमने क्या किया, H0 दैट इज नल हाइपोथेसिस. ये रेशियो है. ओके, दिस इज द रेशियो दैट अबाउट व्हाट पैरामीटर आई एम टॉकिंग. ओके. सो नाउ दिस विल बी द मीन का नॉट मतलब नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस इन द नल मीन. ओके, इक्वल्स टू $113,000, दैट मींस $113,000. तो पहले मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया. सो इधर ये ट्रू है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नॉट इक्वल टू $113,000. ओके, उसको हम H1 भी बोल सकते हैं, H अल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं. इट्स कॉल्ड एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ये जो भी आता है, जो भी अगर आपको कोई आकर के बोलता है तो पहले तो आप एक्सेप्ट ही करते हो. राइट. आपको किसी चीज का आइडिया नहीं है, कोई आकर के आपको बोलता है, यू सिंपली एक्सेप्ट इट. दैट इज व्हाट द नल हाइपोथेसिस है. लेकिन आप बाद में फिर और लोगों के साथ इंक्वायर करते हो, फिर आपको पता चलता है हाँ ये गलत भी हो सकता है. सो अल्टरनेट हाइपोथेसिस. सो दिस इज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ओके. So the next, this thing is H0 is $113,000. So what I need to do, ये इसको कैसे करते हैं, except if mu naught is close enough to the true mean. Okay, mu naught is close enough to the true mean. मतलब अगर हमने जो मीन हम निकालने वाले हैं अभी, एक्चुअली जाके हम डेटा साइंटिस्ट हैं तो हम एक्चुअली जाकर के डेटा एनालाइज करके जो हम मीन निकालेंगे, अगर इससे क्लोज है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ इट इज ऑफ if it is of around 1, 1, 2, 999 ऐसा काइंड ऑफ है, ऐसे 999 ऐसा कुछ है. ओके, सो आई कैन एक्सेप्ट इट. हाँ भाई ये $1-2 का फर्क है. सो मैक्सिमम आई कैन गो टिल 112, 400, या फिर यहाँ अगर मैं चला जाऊंगा
ऐसा मैं चला जाऊंगा तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूं सो इट विल बी 112,000 हाँ, ये 112,000 हो जाएगा. सो इट इज वेरी फार फ्रॉम दिस. तो मैं इसको इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ. दिस विल बी एक्सेप्टेड, दिस वोंट बी एक्सेप्टेड. इवन इफ इट वुड बी 500 और इट वुड बी 600, देन आई वुड हैव एक्सेप्टेड इट, because round up करने में ये आता है. So it's not that far, huh? $400 is, yes, it's a big amount. It goes around 28 या 30,000 के ऊपर टच करता है, लेकिन फिर भी it's a still okay, क्योंकि 30-40,000 का फर्क हो सकता है. Like it is adjustable. हम राउंड ऑफ के बेसिस पे देख रहे हैं. So reject if mu naught is too far from the true mean. So हम इसको कब रिजेक्ट कर सकते हैं? जब ये बहुत ज्यादा दूर है उस असली डेटा से. मैंने क्या क्वेश्चन पूछा इसमें, मेरा आइडिया क्या था इसमें कि 113,000 यूएस डॉलर्स एवरेज है क्या, हाइपोथेसिस मैं से लगा रहा हूँ हाइपोथेसिस कि एक्चुअली 113,000 डॉलर्स है क्या एवरेज डेटा साइंटिस्ट का सैलरी. ओके, so I'll just accept when mu naught is close enough to the true mean and I'll just reject if mu naught is too far from the true mean. आपको आपके दोस्त ने आके बोल दिया, आप कभी एक्सेप्ट करोगे कि हाँ अभी अगर ऐसा ऐसा वैल्यू आ गया, हाँ भाई तूने सच बोला था, मैं समझ गया, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू टोल्ड द ट्रूथ. बट आप रिजेक्ट करोगे तब कि जब ये ज्यादा ही फर्क आ गया इसमें. ओके, $1,000 इज रियली अ बिग अमाउंट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज टू साइडेड टेस्ट, क्योंकि हम बस इधर इक्वल इक्वल वाले को देख रहे हैं, हमने एग्जैक्ट इसको ही पकड़ा है. दैट्स व्हाई इट्स अ टू साइडेड. इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है. दैट्स व्हाई इट्स अ टू साइडेड टेस्ट. फॉर एग्जांपल अभी अगर मैंने $114,000 करके मुझे डेटा में पता चल गया, सो इट इज ग्रेटर देन $113,000. और अगर मुझे ये $111,000 भी पता चल गया, इट इज लेस देन $113,000. तो ये टू साइडेड टेस्ट हो गया, क्योंकि इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है. लेकिन अगर मैं इसमें कोई ग्रेटर देन, इक्वल टू या फिर ओनली ग्रेटर देन या फिर ओनली लेस देन ऐसा वैल्यू डाल दूं, then it would be a one sided test. I'll discuss about this. Okay, यहाँ एक एग्जांपल भी है मेरे पास. I'll do that. Okay, so hypothesis like innocent until proven guilty. H naught is true until rejected. आप इसको तब तक रिजेक्ट नहीं कर सकते जब तक आपको ये गलत नहीं मिलता. आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते. ओके, एच नॉट इज ट्रू अंटिल रिजेक्टेड. जब तक आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते तब तक आपको म्यू नॉट के बेसिस पे टेस्टिंग करना पड़ेगा, लाइक द नल हाइपोथेसिस के बेसिस पे. जब तक हाँ, जब तक दिस नल हाइपोथेसिस आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते तब तक, जब आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही नहीं दिखता तब तक, तो तब तक आप इसी के बेसिस पे टेस्टिंग करते रहोगे. ओके, टिल द एंड ऑफ द डेटा. नाउ दिस इज वन साइडेड टेस्ट. दिस इज one sided test. Okay, one sided. क्यों है one sided? क्योंकि इसमें मैंने बोला है सीधा कि ये ग्रेटर देन है, ऐसा मैंने बोल दिया है. $125,000 से ग्रेटर देन है ऐसा मैंने बोल दिया है. लेकिन इसमें लेस देन और इक्वल टू ही हो सकता है. इसमें दो ऑप्शंस नहीं हो सकता है, इसमें एक ही ऑप्शन हो सकता है. That's why it is called as one sided test. Okay, whereas if you see here it is a two sided test, क्योंकि इसमें मैंने इक्वल टू बोल दिया. इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है. यहाँ सिर्फ इससे कम या फिर इक्वल टू हो सकता है. ओके, it's not a two sided test, it's a one sided test. So now we'll go in detail with this example. ठीक है, आप समझो you are all in UK यूनिवर्सिटी. ठीक है, आपका ग्रेड्स कैलकुलेट किया जा रहा है. ठीक है, देन आपके पास दो डीन थे. ओके, एक यूनिवर्सिटी वाले डीन जो अब भी आए और एक ओल्ड डीन थे जिन्होंने बोला कि 56% मार्क्स है. सो व्हाट सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग इज दिस? दिस इज अ टू साइडेड टेस्ट. इसीलिए हमारा अल्फा दोनों तरफ है. ये अल्फा इधर है, अल्फा इधर भी है. ठीक है, अल्फा, दिस इज अल्फा बाय 2, दिस इज अल्फा बाय 2. ओके, क्योंकि जो भी अल्फा होगा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे. दैट इज अ सिग्निफिकेंस वैल्यू. ठीक है, अल्फा को बोलते हैं सिग्निफिकेंस वैल्यू, अल्फा बाय 2. सो ये दोनों रिजेक्शन एरिया होता है. ये इसके नीचे गया तो रिजेक्ट, इसके नीचे गया तो रिजेक्ट. ओके, so the significance level alpha is the probability of rejecting the null hypothesis if it is true. ठीक है, the probability of rejecting null hypothesis. Okay, तो इसमें आपके ओल्ड डीन ने बोला कि कॉलेज का परसेंटेज, एवरेज परसेंटेज 56% है. ठीक है, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो 56% लाते हैं. लेकिन यहाँ जो है यूनिवर्सिटी डीन, वो बोल रहे हैं कि नहीं, अभी जो आए नए यूनिवर्सिटी डीन, दिस इज न्यू यूनिवर्सिटी डीन. समझो ये नए यूनिवर्सिटी डीन है, लाइक अभी प्लेस हुए हैं वो, ये रिटायर हो गए. समझो ओल्ड वाले जो डीन है वो रिटायर हो गए.
तो ये बोल रहे हैं कि नहीं रे यार, मतलब कोई भी जो भी है लाइब्रेरी में दिखता है मुझको तो एटलीस्ट 70% तो होगा ही इस कॉलेज का, जो भी मार्क्स है उसका एवरेज तो एटलीस्ट 70% तो होगा ही होगा. सो ही वॉज लाइक दैट. तो हमने क्या किया, वी एज अ स्टूडेंट्स हमने सोचा कि ओके वील सॉल्व दिस प्रॉब्लम सिंस वी आर स्टडिंग डेटा साइंस, तो हम ये सॉल्व करेंगे. तो हमने क्या किया, नाउ वी वेंट ओवर देयर. ठीक है, हमने पहले जो फैकल्टी ने, ओल्ड वाले टीम ने बोला, हमने उसको कंसिडर किया. ओके, हाँ, हमने जो ओल्ड वाले टीम ने जो बोला, हमने उसको सबसे पहले कंसिडर किया, क्योंकि हमें ओल्ड वाले टीम से ज्यादा भरोसा है rather than नए वाली टीम, क्योंकि नए वाली टीम को पता भी नहीं है कि मतलब अभी भी आए, उनको पता भी नहीं कौन सा डिपार्टमेंट कौन सी बिल्डिंग. ओके, सो विल बी बिलीविंग द ओल्ड टीम. तो हमने ओल्ड टीम वाले को समझ लिया कि 56% है. नाउ अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि ये नॉट इक्वल टू 56% होगा. सो नाउ अल्फा, द कॉमन वैल्यूज ऑफ अल्फा, हम अल्फा कब लगाते हैं, दिस इज 98%. ठीक है, ये हो गया 90, सॉरी सॉरी, दिस इज 99%, दिस इज 90, 99%, दिस इज 95%. ओके, एंड दिस इज 90%. ये 90% है, 99 है, 95%. कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस इंटरवल. कॉन्फिडेंस का जो परसेंटेज होता है ना, कि मैं कितना परसेंट श्योर हूँ. सो दिस वुड बी लाइक 99%, क्योंकि 99% अभी 1 माइनस 99% करोगे तो ये आपको वैल्यू आएगा ना, दिस यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू. ओके, तो ये 95% है, फिर ये 90% है. ओके, ये मोस्ट कॉमनली यूज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ. ये हर वक्त यही डेटा यूज करते हैं फॉर एनी प्रेडिक्शन बेस्ड डेटा. ओके, so now old dean 56%, true mean is 55%, 70% unicity dean. Okay, so now this is the thing that happens. Okay, तो अभी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मैंने जो क्रिएट किया है, उसको आप HA बोल सकते हो, H1 बोल सकते हो. हमारा मेन फोकस है ग्रेड. ओके, मीन ग्रेड, मीन मार्क्स, मार्क्स कितना है, एवरेज मार्क्स स्टूडेंट्स के. सो मैंने ये कंसिडर किया कि इट इज नॉट इक्वल टू 56%. ओके, सो यहाँ मैंने जब ऐसा कंसिडर किया, तो नाउ आफ्टर अप्लाइंग दिस अल्फा एंड ऑल. ओके, तो इसी में था, इसी में डाल के रखा था, आई डिडंट नोटिस. ओके, सो ये मैंने जब डाल करके देखा, दिस अल्फा बाय 2, राइट, अल्फा बाय 2 करना रहता है, यहाँ अल्फा बाय 2, सिमिलरली यहाँ भी अल्फा बाय 2. सो 0.05% में ही उसके बाद से ही रिजेक्ट हो गया. 95%, आई मीन दिस इज 99%, हाँ 99% में ये रिजेक्ट हो गया. नो, दिस इज 99% एक्चुअली, 99%, दिस 90%. सो 90% में ये रिजेक्ट हो गया, तो 95 में भी और ज्यादा रिजेक्ट हो गया, एंड दिस इज कम्प्लीटली रिजेक्टेड. सो अल्टीमेटली जो नए यूनिवर्सिटी वाले डीन थे, इट फॉल्स अंडर अल्फा बाय 2 वाला जो रिजेक्टिंग क्राइटेरिया है, तो इसीलिए उनका ये रिजेक्ट हो गया. ओके, नाउ विल बी अप्लाइंग वन साइडेड टेस्ट. ये क्या हो गया, ये टू साइडेड हो गया ना, ये दोनों तरफ आ रहा है. अभी मैंने बोल दिया कि 56% एवरेज नहीं है, तो इस तरफ भी हो सकता है, उस तरफ भी हो सकता है, कि मतलब 56 के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है. जैसे नीचे की तरफ में जाकर के रिजेक्ट हो गया, ऊपर की तरफ जाकर के रिजेक्ट हो गया, ऐसा भी हो सकता है ना. सो नाउ आई विल बी अप्लाइंग वन साइडेड टेस्ट. ये देखो पूरा अल्फा इधर ही है, सो दिस होल एरिया विल बी अल्फा. ये जो होगा ये पूरा अल्फा है, ये पूरा सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा. यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आप कितना भी नीचे जा सकते हो, स्टिल वो आपका डेटा रिजेक्ट नहीं होगा. ओके, यहाँ कोई रिजेक्शन क्राइटेरिया है ही नहीं, यू कैन गो एंडलेस टुवर्ड्स हियर. ये आपका टेल नेवर एंडिंग टेल जैसे जाते जाएगा. ओके, सो लेस देन 70%, ये आपने सोचा ठीक है, मैं अभी सोचता हूँ 70% तो नहीं होगा, मैं नए वाले टीम को भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन 70 से कम हो सकता है. ओके, सो नाउ व्हाट डिड यू डू, आपने फिर नल हाइपोथेसिस ये क्रिएट किया, बोला कि ये 70 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है. व्हाट, 70 से ग्रेटर देन इक्वल टू, 70 से नीचे नहीं बल्कि ज्यादा, तो ये उस तरफ जाकर के रिजेक्ट होने के चांसेस. ओके, सो नाउ इफ यू सी, उस तरफ जाकर के रिजेक्ट होने के चांसेस. नाउ हियर इट इज टेलिंग मी दैट 70% से ऊपर है, तो ये मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा. सो अल्टीमेटली इसमें मुझे क्या चूज करना होगा, व्हाट विल बी माय नल हाइपोथेसिस ओवर हियर, this will be my null hypothesis and this is the true one. ये मेरा true है, ये accept हो गया ना, are you getting it, क्योंकि असली मीन तो 55% है, ट्रू मीन तो 55% है. सो ये मेरा एक्सेप्ट हो गया कि यही सही है, क्योंकि ये 70% के नीचे ही आ रहा है. सो नाउ आफ्टर डूइंग दिस, नाउ आई हैव रिजेक्टेड इट, कि 70 के ऊपर नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी पॉसिबल एट ऑल. ओके, सो दैट्स व्हाई
इधर मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू हो जाएगा। तो ये वाले केस में क्या होगा, जब मैंने इसको ग्रेटर देन समझ लिया तो उस टाइम पे मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू हो गया। ओके, आर यू गेटिंग इट? सो ये ट्रू हो जाएगा मेरे लिए। अभी हम मोस्ट कॉमन एरर्स की भी बात करेंगे कि डेटा साइंटिस्ट क्या क्या गड़बड़ करते हैं। ओके, लाइक नॉर्मल कंफ्यूजन होता है ना कभी कभी, तो क्या क्या गड़बड़ होता है वो भी हम देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ एरर्स, कौन से एरर्स होते हैं? टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर कब होता है? जब आपने सही वाले नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। अभी जैसे हमें ये वाले केस में ये ट्रू था ना, अगर हमने इसको रिजेक्ट कर दिया होता गलती से, कोई डेटा बिना कुछ प्रॉपर एविडेंस का, या फिर कोई गलत एविडेंस मिलने के बावजूद अगर हमने ये कोई गलत एविडेंस मिल गया इसीलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो हमारा टाइप 1 एरर होता था। टाइप 1 एरर। अब टाइप 2 एरर, इसको क्या बोलते हैं? इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? टाइप 1 एरर का प्रोबेबिलिटी अल्फा होता है। ओके, अल्फा इज दी टाइप 1 टाइप 1 एरर का प्रोबेबिलिटी, हमने यहाँ भी डिस्कस किया था। ओके, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, अल्फा। ओके, अल्फा क्या है? रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इफ इट इज ट्रू। नल हाइपोथेसिस ट्रू होने के बावजूद हम इसको रिजेक्ट करते हैं, उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है वो अल्फा होता है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट एज अ सिग्निफिकेंस लेवल। ऐसे ये किया था। ओके, नाउ व्हाट इज टाइप 2 एरर? टाइप 2 एरर विल बी एक्सेप्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो तो गलत है, फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके, सो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? बीटा, एंड बीटा इज 1 माइनस अल्फा। या एक्चुअली, हाँ, 1 माइनस, एक मिनट, या आप बोल सकते हो 1 माइनस अल्फा बोलो, या फिर अल्फा को 1 माइनस बीटा बोलो, both are same I guess. 1 minute. Goal of hypothesis testing: rejecting a false null hypothesis. Okay, yes, when you reject a false null hypothesis, तो ये इसका probability बीटा होता है, and when you reject a this thing, ये 1 minus बीटा होता है, so alpha equals to 1 minus beta. Okay, तो बीटा will be equal to 1 minus alpha. Okay, दोनों एक ही है। the power of test, this is the power of the test, तो आपको alpha बीटा याद रखना है थोड़ा। So now I'll give you some kind of, since we are all above 18, movies तो देखते ही हैं हम, तो समझो ये एक हीरो है जो डेटा साइंटिस्ट है। ओके, उसने जाके एक लड़की को प्रपोज किया। ओके, सो एच नॉट ट्रू, एच नॉट फॉल्स, ये जो ट्रूथ टेबल है, इट्स अ काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर कैलकुलेशन। ठीक है, एक्सेप्टेड। अगर उसने एक्सेप्ट किया तो तुम्हारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है। आपने नल हाइपोथेसिस में क्या जनरेट किया? that this null hypothesis will be she'll accept his proposal. Okay, वो उसको accept करेगा, accepting. Okay, this is my null hypothesis. Okay, now HA will be rejected, कि मतलब वो उस लड़की ने ना बोल दिया। Okay, so this is rejected, this is rejected. Okay, सो योर रिसर्च, हाँ, ये आपका रिसर्च है, ये आपका हीरो है, या फिर आप ही समझ लो कि आपने किसी लड़की को प्रपोज किया, देन शी विल बी लाइक एक्सेप्ट कर सकती है, यू हैव क्रिएटेड नल हाइपोथेसिस, शी विल बी रिजेक्टिंग, यू कैन आल्सो डिनोट इट एज H1 कि वो रिजेक्ट भी कर सकती है। ओके, सो इन द केस कि उसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, सो that would be like you have tried the null hypothesis. Okay, you have tried the null hypothesis, अगर उसने accept कर लिया, then your null hypothesis is true. Okay, then what you do is when you when she rejects you, मतलब आपने null hypothesis को अगर उसने reject कर लिया, then you come under type 2 error, क्योंकि आपने इसको reject किया। what have you rejected? You have rejected the true, 1 second, you have accepted the false null hypothesis. That means you have rejected the true alternative hypothesis. Are you getting it? Since it is really confusing, you have to understand it. देखो ये type 2 error क्यों है? Why it is type 2 error? Because you took it as a the null hypothesis as she will accept it, but
जब ये रिजेक्ट हो गया, ये तो फॉल्स हो गया ना, ये आपका फॉल्स है, बट आपने ये एक्सेप्ट किया, मतलब दिस इज अ फॉल्स थिंग, शी डजंट लाइक यू एक्चुअली, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉल्स है. ओके, वेट अ सेकंड, I'll make it more clear. ठीक है, मैं इसको और क्लियर करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल विल एक्सेप्ट इट. ओके, ये गर्ल अगर आपको लाइक करती है, ओके, और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस है दैट द गर्ल डजंट लाइक यू. ओके, so this is like this is will be my null hypothesis. Okay, and this will be my alternate hypothesis. Okay, now you as a researcher, you go and propose her, and when she accepted, your null hypothesis is true. Okay, but when she rejects it, your null hypothesis becomes false. Okay, your false null hypothesis, you have accepted the false null hypothesis. What have you done? You have done false null hypothesis. मैंने यहाँ explain किया था, right? One second, yeah. Accepting a false null hypothesis, that is type 2 error. Type 2 error, so you have done a type 2 error, you have committed a type 2 error. But when अगर ये लड़की आपको लाइक करती है, now you have considered that HA is right, that means you have rejected H0, and you went to her and you just proposed, and then she did not accept it. Now what happens is, आपने जो true null hypothesis है उसको रिजेक्ट कर दिया. ओके, जो आपका सच में आपको जो इंस्टिंक्ट था कि शी मे लाइक मी, सो वो आपने रिजेक्ट कर दिया. सो दैट मींस यू हैव डन टाइप 1 एरर. ओके, सो व्हिच अमंग दिस इज अ मेजर रिस्क? लाइक टाइप 1 एरर में आपको बहुत ब्लेम किया जाएगा कंपनी में, लाइक हाउ डिड यू कमिट द टाइप 1 एरर, बट फॉर टाइप 2 एरर इट इज थिंग कि मतलब हो सकता है टाइप 2 एरर यू वोंट बी ब्लेम्ड फॉर दैट. ओके, सो नाउ विल बी यूजिंग इट प्रैक्टिकली, हम कैसे यूज करते हैं देखते हैं. ये मैंने एक एक्सेल शीट बनाया था, एक मिनट में एक्सेल शीट खोलता हूँ. So now there's a same Excel sheet, हमने वही same वाला data ले लिया है, ठीक है. Test for mean population variance known and all. Okay, so now what will be my first step here? Test the null hypothesis at 10% significance. So my alpha equals to 10%. Okay, so that will be equal to, so now someone should support me up here over here, so it will be 0.1, I guess. Yeah, so this is my 0.1. Okay, now सबसे पहले तो हमें mean निकालना होता है, which I missed it actually. Okay, so what will be my mean? Equals to average. इस सब का average लेना है. Okay, so my average is 100,200. Okay, so what is the number of sample I have over here? What is the number of sample? So I'll just put the count over here. Okay, I've just put the count. Okay, and that is 30. ठीक है. So after this what I have to do is, हमें major focus हमारा क्या होना चाहिए? I have to calculate the z. ये z capital Z है, वो small z है. So don't get confused. Okay, so ये capital Z है. Now for example, अब ये यहाँ मैंने एक चीज मिस किया. One second. Okay, यहाँ मुझे ग्लास डोर ने क्या बोला है? ग्लास डोर ने मुझे क्या बोला है कि डेटा साइंटिस्ट का जो सैलरी है वो $113,000 होगा. ओके, उसने मुझे ये बोला ना, उसने मुझे ये बोला, तो मुझे उसे सही है या गलत है टेस्ट करना है कि ग्लास डोर ने बोला या फिर आपके फ्रेंड ने बोला है, कोई किसी ने बोला है, तो ये आपको टेस्ट करना है, राइट. सो नाउ माय मेजर फोकस वुड बी कि मैं इसको एक्सेप्ट कैसे करूं, लाइक हाउ विल आई बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे पास एक सैंपल डेटा है. आपको एक फ्रेंड ने बोल दिया या फिर एक इंटरनेट के साइट ने बोल दिया कि ये एवरेज डेटा साइंटिस्ट का सैलरी है. सो हाउ डू यू एक्चुअली टेस्ट इट? आपके पास एक सैंपल है, आपके पास आपके घर के बगल में एक कंपनी है, उधर आपको एचआर ने बोल दिया देखो भाई ये मेरा एवरेज पैकेज है या फिर ये मेरे क्लाइंट्स के पैकेज है जो काम कर रहे हैं यहाँ, एंड दिस इज देयर पैकेज. सो यू गॉट दिस सैंपल, आपके पास सैंपल 30 है, देन दैट इज द अल्फा ऑफ 10. ओके, नाउ यू हैव द मीन. ओके, सो आप यहाँ इस केस में आप क्या करोगे? नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग इज, वन सेकेंड, यहाँ ये मिसिंग है. क्या मिसिंग है? स्टैंडर्ड डिविएशन. वेट अ सेकेंड, आई might have put the standard deviation over here. Yeah, the standard deviation is just a second.
what will be my standard deviation? Let me remember. Let me try to remember that. Okay, just give me a second. So I'll put it as, okay, I'm not able to remember it, so I'll just put it as 1,500,000 something. हाँ, ये मेरा standard deviation है, समझो, ठीक है, इतना मेरा deviation हो सकता है. Okay, तो हमारे पास standard deviation known है. What is the thing? Standard deviation is known. So what will apply? Somebody answer. हम कौन सा statistics apply करेंगे? Z-score. Yes, ma'am. So now we'll be applying Z-score. Okay. So अभी Z-score apply करना है. लेकिन हमें इसके पहले what we have to do is we have to do the standardization. Okay. Standardization कैसे करते हैं? We have discussed it. Does anybody remember how to standardize? ये normal distribution है, इतना तो पता है, I guess. Everything is normal distributed. Okay, normally distributed actually. Okay, normally distributed. Yeah, original value, that is my original value is 100, 200, क्योंकि मेरे पास mean है ना, हाँ, minus. Okay, so my mean is this. Okay, I'll put it equal to मैं बाद में डालता हूँ. So divided by standard deviation, right? But here it would be standard error, क्योंकि यहाँ हमारे पास हम Z-score लगा रहे हैं, right? So there should be some error. That's why we are using Z-score. So यहाँ standard error होगा. So my standard deviation is 15,000. So that would be divided by 15,000. Okay, divided by root of this thing 30 root. Okay, this would be my formula. So when I put equal to over here, okay, so my this thing is minus 768. Okay, तो ये मेरा minus 768 आ रहा है. Okay, that is my capital Z. This is my capital Z. Okay, wait a second, have I done it correctly? No, it is giving me a different answer. So what went wrong? Maybe bracket का कुछ issue किया है मैंने, I guess. So let's go step by step. So let's go with denominator. Denominator of standardization. So इसका denominator क्या होगा? This divided by इसका root. Okay, this 2738. Actually it should be 2739. ठीक है 2738 ही ले लेते हैं, no issues at all. तो ये 2739 का 2738 हो गया. So now my numerator, I know my numerator, that is this minus 113. Wait a second, I'll directly put the value now. ये डॉलर है, उसमें मैंने वर्ड डाला है, तो I cannot put the calculation part. Okay, ये मेरा numerator है. What is happening here? So yes, so this is the thing divided by this. Okay, so it is coming minus 4.67. So my I need to check this minus 4.67 in my Z table. Z ये small z score table में मुझे ये value check करना है. Okay. So what will be the value for minus 4.67? तो ये हम बाद में check करेंगे, हमें 10% significance का निकालना है.
सो फॉर 10% सिग्निफिकेंस 0.1 है. ओके, सो उसका फॉर्मूला क्या था? डज एनीबॉडी रिमेंबर? फॉर z स्कोर हाउ डू वी डू दैट? ये मेरा कैपिटल Z का वैल्यू आ गया, राइट? दिस इज माय कैपिटल Z का वैल्यू दैट आई मेंशनड. दिस इज माय कैपिटल Z का वैल्यू, राइट? तो हमें Z स्कोर में क्या चेक करना है? जो 10% वाला है. सो हाउ टू प्रोसीड विद दैट? मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% है इस केस में. सो मेरा अल्फा क्या हो गया? 0.1. डज एनीबॉडी रिमेंबर दैट फॉर्मूला? दिस इज द Z स्कोर फॉर्मूला. ठीक है, ओके. सो Z स्कोर का फॉर्मूला हमें पता है, Z अल्फा बाय 2 सिग्मा बाय रूट n. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज x बार, हमें तो मीन तो पता चल गया दिस. ओके, अभी अल्फा बाय 2. सो व्हाट इज माय अल्फा? I open the t table. Okay, let me go and open the t table. Okay, okay. So मुझे क्या करना है अभी? Just a second. Yeah. So my alpha by 2 will be what? That will be 0.05. Okay. So मेरे को alpha का वैल्यू मिल गया 0.05. So what would be my confidence interval? That will be 1 minus 0.05. So ये 0.95 मुझे सर्च करना. Okay. Where? In the Z table. So I'll just control F. Then just say 0.95. Just find all. हाँ, मुझे 0.95 मिल गया. So what? Where is my 0.95 actually? Okay, this is 0.9495. So it is giving me 1.64. Okay, ये मुझे कितना दे रहा है? 1.64. Okay, see the same thing. हाँ, ये हमने किया भी है अल्फा बाई 2 0.05 से 1.64 में आ रहा है. Okay, now I'll just put the Z score is equal to 1.64. Okay, so is this value greater than 4.67? When we can reject this? When we can reject this? When we get this kind of value. हाँ, जब हम कब रिजेक्ट कर सकते हैं? जब रिजेक्टिंग रूल दिखा देता हूँ आपको. So we can reject it when 4.67 is greater than 1.96. मतलब I'll just tell you one second. So here our capital Z is minus 4.67. हमारा जो कैपिटल Z है वो minus 4.67. अभी इसको मैं जाके Z स्कोर में जाके ढूंढता हूँ just for this thing. 4.67 तो नहीं है ना? I cannot search this, right? 4.67 मैं कहाँ से ढूंढूंगा? So I can directly take it as 0.99990. ये यही मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद तो है ही नहीं, 4.67 का तो है ही नहीं मेरे पास. डायरेक्टली Z स्कोर अवेलेबल है ना ये वाले केस में, यहाँ नहीं है. So either I should take 0.999 या फिर मुझे 4.67 ही छोड़ना है. So what is minus 4.67? If minus 4.67 से जितना बड़ा होता है उतना ही पॉजिटिव 4.67 से छोटा होता है. ओके, Z स्कोर का वैसा ही होता है कि अगर आपको minus 4.67 से बड़ा minus 4.67 से बड़ा आपको वैल्यू चाहिए, so you have to search for the value 4.67 से छोटा. ओके, 4.67 से छोटा कर. इट्स लाइक यहाँ इक्वल टू साइन है, आपने इधर ले लिया इन दोनों को. ठीक है, या जहाँ यहाँ अगर आपने ले लिया तो फिर आपको इससे कम वाला वैल्यू लेना. सो जस्ट फॉर द कंफर्मेशन कि ये मेरा 4.67 जो है, जो मेरा इसका मॉड ले लो, बेटर होगा इसका मॉड ही ले लो. ओके, जो मेरा 4.67 है ये इस वैल्यू से बड़ा है ना 1.64 से. Am I right? 1.64 से बड़ा है. So hence we can reject this. क्योंकि हम इसको कब रिजेक्ट कर सकते हैं? जब ये वैल्यू बड़ा है. तो इसीलिए हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया. आर यू गेटिंग इट? इज एवरीबॉडी गेटिंग इट? हमारा ये नल हाइपोथेसिस था. आई विल मेंशन एवरीथिंग.
ये हमारा नल हाइपोथेसिस था, ठीक है। और ये हमारा z स्कोर वैल्यू था फॉर 10% कॉन्फिडेंस। ये हमने 10% लिया है, यहाँ मैंने 5% लिया है, इसीलिए आंसर थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है आपको। यहाँ मैंने 5% लिया है, ओके। यहाँ 5% में भी रिजेक्ट हो रहा है, अब 10% में भी रिजेक्ट हो रहा है। सो दैट्स नॉट द इशू। आपको चेंज द मॉडिफिकेशन ओवर हियर। मैंने पहले 5% से किया, स्क्रीनशॉट लेकर के डाल दिया। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके। सो 1.64 अल्फा बाय 2 is 0.05, तो मेरा कॉन्फिडेंस वैल्यू हो गया 0.95। 0.95 जब मैंने सर्च किया जी स्कोर के टेबल में तो 1.64 आ गया। तो 1.64 इज लेस देन 4.67। इसको तो हमें मॉड लेना है, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि 4.67 से कम, मतलब पॉजिटिव 4.67 से कम चाहिए, अगर मुझे माइनस 4.67 से ज्यादा चाहिए। लेकिन मेरा नल हाइपोथेसिस से मुझे ये वैल्यू मिला बाय अप्लाइंग नल हाइपोथेसिस, बाय अप्लाइंग नल हाइपोथेसिस, ठीक है। मुझे क्या मिला, एक मिनट। बाय अप्लाइंग नल हाइपोथेसिस आई गॉट द कैपिटल Z वैल्यू, I got the capital Z value as 4.67, okay. Now by applying confidence interval Z score, since variance is known, ठीक है। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, या मैं चल लिख देता हूँ, मैं वेरिएंस इज, चलो लिख देता हूँ, वेरिएंस इज नोन, ओके। नाउ ओके, हमें वेरिएंस पता है, तो जी स्कोर से हमें क्या वैल्यू आया, हमें क्या वैल्यू आया, ये 1.64। हमारा जी स्कोर का वैल्यू आया 1.64। कैपिटल Z का वैल्यू 4.67। सिंस कैपिटल Z is greater than small z, so we can reject it, because दोनों, हमें क्या देखना था कि मतलब ये सही है या गलत है। सो अल्टीमेटली ये जो इसने जो मीन बोला है, इसने जो नल हाइपोथेसिस हमने लगाया वो रिजेक्ट हो गया। सो नाउ आवर अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज ट्रू। हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, क्योंकि ये रिजेक्ट हो गया ना, हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, तो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू हो गया। इज एवरीबॉडी गेटिंग इट? डू आई नीड टू रिपीट समथिंग? इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद जो है हम अप्लाई करके देखने वाले हैं, लाइक हाउ टू टेस्ट एंड ऑल। सो वो सब वैल्यूज हैं। सो सिंस आई हैव कैलकुलेटेड फॉर 5%, हम इसको भी यूज करके देख लेते हैं, एक ही मिनट। हाँ, सो 5% में भी वो रिजेक्ट हो रहा है, 1.96 आ रहा है, फिर भी रिजेक्ट हो रहा है। सो अभी हमें क्या करना है कि हम कब तक रिजेक्ट होते जाएगा ये, हम कब तक नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर सकते हैं, दैट इज आवर मेन इश्यू, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पी वैल्यू। P value I will be teaching in the next lecture. I think it's already too late. Okay. So P value I will be teaching in the next lecture. But you just remember this, हाँ, कि हम कब तक इसको रिजेक्ट करते जाएंगे। देखो 10% में भी रिजेक्ट हो चुका है नल हाइपोथेसिस, यहाँ मैंने 5% का निकाला है, 5% में भी रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस। सो कब तक रिजेक्ट होते जाएगा? क्या 1% में भी रिजेक्ट होगा? क्या 0.001% में भी रिजेक्ट हो सकता है? 0.1% में भी रिजेक्ट हो सकता है? So that is the main part of the crux of this, that हमें पहले आदमी आकर के कुछ भी बोलता है, हमें वो एक्सेप्ट कर लेना है, दैट इज अ नल हाइपोथेसिस, ओके। बाय अप्लाइंग नल हाइपोथेसिस वी गॉट द कैपिटल Z स्कोर ऑफ 4.67, बट अप्लाइंग कॉन्फिडेंस इंटरवल वी गॉट अ Z स्कोर, स्मॉल z स्कोर ऑफ 1.64। सिंस इज द कैपिटल Z माइनस 4.67 हमें आ गया था, हमने स्टैंडर्डाइज किया है। स्टैंडर्डाइज का फॉर्मूला होता है Z 0,1। स्टैंडर्डाइज करने के बाद उसमें क्या होता है, मीन 0 हो जाता है, एवरेज को हम 0 समझते हैं, एंड जो हमारा 1 है, 1 दैट इज आवर स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन को हमने 1 कर दिया, तो इसलिए स्टैंडर्ड एरर, इट वाज अ मिनिमल थिंग दैट केम इन द डिनोमिनेटर, दैट्स व्हाई आवर वैल्यू केम इनटू -4.67, ओके।